So students, you have to write down your aim here. After that, in this page, right side page, give the heading of experiment number 1A, 1B, 1C, whatever, or 2A, 2B, whatever. Then write down first your aim. Aim, use of vernier calipers to measure the diameter of a small spherical body. This aim you have to write down in your book. After that, write down your apparatus, vernier calipers, spherical bodies such as pendulum bob or a glass marble. That you have to write down in your apparatus. Then third, formula of list of vernier calipers in this experiment. In some experiment we have some observations blank. In some experiment we have some observations blank. Like so, here in the third, you have to write down the observations, formula of list count of vernier calipers. That you have to write down here. And in your manual book, you can see a principles of practicals. That is some points on principles that you have to write down from your manual book in your journal. All the things you have to write down with blue pen only. Blue pen only. Okay? After that, here you can see one of the observation table. Here you can see this one of the observation table of experiment 1A. So you have to draw this experimental table, observation table in your journal book on the left side page with pencil only. With pencil only. This is your apparatus diagram. This is your apparatus diagram. This diagram also you draw in your journal book. And observation table. After completing your practical, whatever your observations, what you can see in your practical, what you are doing in your practical, that all the observations, all the measurements, reading, etc., you have to write down in your table as per the given instructions and the follow. And write down also here in your answers book, general book. Last one. After filling your table, you show your calculations like this. After fill up your observation table, after filling your observation table, you show your calculation of your observations or importance point on your left side page. Okay? These types of journal you have to fill up for all the experiment. At the end of the academic year, I will certify this book. At that time, I will fill up your book with your name, school's name, etc. And at the end of the my sign, principal name should be signed here. So this is your practical work. First, introductions work. Now, practical. Practical number 1. To measure the diameter of a given spherical body, small spherical body using vernier calipers. Okay? C. Apparatus. This apparatus known as vernier calipers. This apparatus known as vernier calipers. This is your knob. How you can use this part. Here you can see some printed number. You can see the printed number clearly. This part should be in front of your sight like this. So pick up your vernier calipers with the left hand this way
left hand, press this knob through the thumb, and after pressing, just sliding the scale. So this is your apparatus. How you can use? With the help of left hand, press the thumb and sliding the scale this way. बरोबर है? Then apparatus के बारे में. Apparatus having two type of scale. One scale is called main scale and second scale called is the vernier scale. Apparatus में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है. ये मेन स्केल, यहाँ 0 नंबर से लेके 15 नंबर तक के नंबरिंग लिखे और यूनिट लिखा है सेंटीमीटर में. ये आपकी नॉर्मल जो कंपास बॉक्स में ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो स्केल होती है वही स्केल है. 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक का ये छोटा सा स्केल है और हर एक सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे पार्ट्स मतलब डिवीजन से मतलब 1 mm के पार्टिंग है, पार्टीशन किए हुए हैं मेन स्केल में. अब मेन यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग हो रहा है, ये स्लाइडिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे खास ध्यान से देखिए, ये स्लाइडिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको जो मार्किंग किए गए दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ लाइन वर्टिकल लाइनिंग सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो. ये वर्टिकल लाइन वाला जो स्केल है उसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं. और ये जो 0 से 15 सेंटीमीटर वाला मेजरमेंट वाला स्केल है उसे हम बोलते हैं मेन स्केल. बरोबर? मेन स्केल, उसके पर स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू होती है 1 mm. 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. फिर से, ये आपका मेन स्केल है. यहाँ ऊपर साइड पे जो नंबरिंग है, ऊपर साइड पे वह मेजरिंग आपको 11 साइंस में करना नहीं है, वह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए करना है. ये आपका ईच यूनिट में है, ईच यूनिट में. तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है लोअर पार्ट का जो स्केल है वो 0 से 15 सेंटीमीटर वाला, और हर एक में ईच सेंटीमीटर हैविंग 10 डिवीजन. सो 1 डिवीजन वैल्यू इज 0.1 सेंटीमीटर. सो द स्मॉलेस्ट value division on the main scale is 0.1 centimeter. Now divide on this vernier scale, the vertical lines you can see. Vertical lines are 11. Basically, vertical lines are 11. Out of this 11, you have a 10 division part. 11 line, you have a 10 division. Between 11 lines, you have a 10 division. So on vernier scale, total number of division of vernier scale is 10. It has no any unit, no any centimeter, meter or millimeter unit. It's just a number. The number is total 10 on the vernier scale, this scale. So the list count 0.1 upon 10. Answer is 0.01 centimeter. That is the list count of vernier calipers. I am explaining what is the list count. What is meant by list count? List count means measurement, smallest measurement which we can measure accurately, through the apparatus is known as list count. Just example, see this my watch. Through my watch, I will measure accurately 1 second only, not millisecond. Smallest value of my measurement in my watch is 1 second accurately. So the list count of my watch is 1 second. List count of my watch is 1 second. In your compass box, geometrical box, you have a scale 0 to 15 centimeter like this. The value of one division is 1 mm. So with the help of that scale,
you can measure accurately 1 mm, not less than 1 mm, but accurately 1 mm or in multiple of 1 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, exactly. So the least count of the apparatus is 1 mm of your scale. Same here, the vernier calipers having two type of scale, main scale and vernier scale. The formula of the least count is the magnitude of the smallest division on the main scale, total number of division on the vernier scale, 0.1 upon 10, 0.01 centimeter. Means with the help of this apparatus we can measure accurately 0.01 centimeter up to 0.01 centimeter accurately, least value. I am not saying highest value, I am saying least, smallest value. Okay, let's start our experiment. How we are measuring the object. You can see this is the spherical ball, just like a pendulum bob or a glass marble or a metal ball. Now we have to measure the diameter of this ball. How we are measuring? First, put your spherical body with the two edges of the vernier calipers like this. It's a spherical body, so doesn't matter. You can put this way or this way, because the diameter is same basically. Okay, so this is your first positions of your measurement. How you are putting your object between two edges of vernier calipers. Just press your knob, thumb it, and make sure when you are taking your observation, the spherical body should not be go down like this. फिर से जब भी आप ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेते हो, एक बार अरेंज कर लिया, ये अरेंजमेंट हो गया. अब अरेंजमेंट करने के बाद मेक श्योर कि ये स्फेरिकल बॉडी जो है वह नीचे ऐसे गिर नहीं जाए, हिलना नहीं चाहिए. वो प्रॉपरली इसको पकड़ के रखना है. उसके लिए ये थंब है, थंब से इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और अंदर की ओर ऐसे दबा के रखना पड़ेगा. ध्यान रखना, थोड़ा सा हार्ड लगेगा शुरुआत है, पर थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा और मेजरमेंट एक्यूरेटली करना है. क्योंकि अगर आपको इसका डायमीटर मेजरमेंट करना है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको थ्रेड दिया गया, आपने थ्रेड बांध दिया और स्केल पर रख दिया, तो भी आपको इसका एक पैरामीटर पर से रेडियस और डायमीटर मिल सकता है, मेजरमेंट काउंट कर सकते हो आप. पर यहाँ पे हम लोग स्केल की कंपेरिजन में ज़्यादा डिटेल्स में और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं. लीस्ट काउंट है 0.01, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा जितना एक्यूरेटली मेजरमेंट करना चाहते हैं. सॉरी, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट हुआ. तो मेजरमेंट कैसे करना है? अब ये ऑब्जेक्ट रखने के बाद अगर आपको ये थंब से ऐसे पकड़ कर नहीं पाता है, आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप 2 उंगली, थंब और एक फर्स्ट फिंगर, इन 4 का यूज़ करके ऐसे पकड़ लीजिए और थोड़ा प्रेस करके रखिए, जिससे ये गिर नहीं जाएगा. ये थोड़ा प्रेस करके रखना है यहाँ से और इसको दोनों को प्रेस करना है ऐसे. अब मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले ये वर्नियर स्केल का फर्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल. जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, ये जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल यहाँ नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे आती है. तो ये सेंटीमीटर वाली जो लाइनिंग है आपकी मेन स्केल पर, वहाँ पे कहीं पे कोइंसाइड होती है. इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर वो कोई एक लाइन को एग्जैक्टली कोइंसाइड होती होगी या फिर कोई 2 सेंटीमीटर की लाइन के बीच में होगी. जैसे अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 2.5 और 2.6 के बीच में है. थोड़ी जूम, ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे 2.5 और 2.6 के बीच में है. ध्यान से देखिए फर्स्ट लाइन. अगर ऐसा कुछ बीच में आता है 2.5 और 2.6 के बीच में, तो 2.5 और 2.6 के बीच में आता है, तो आपको कंसीडर करना है 2.5, आपको कंसीडर करना है 2.5 सेंटीमीटर. इस वैल्यू को हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग. अगर बिटवीन 2.5 एंड 2.6 है तो आपको 2.5 कंसीडर करना है.
अगर बिटवीन 1.8 एंड 1.9 है तो आप कंसिडर करेंगे 1.8। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग कैपिटल M, मेन स्केल रीडिंग कैपिटल M 2.5 सेंटीमीटर। अगर ये फर्स्ट लाइन आपका यहाँ पे 2.5 2.6 के बीच में है तो आपका मेन स्केल ऑब्जर्वेशन हो गया 2.5। अब सेकंड स्टेप में ये फर्स्ट लाइन के बाद वर्नियर स्केल पे जो बाकी की जो लाइनिंग है, हर एक लाइन को एक नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर नंबर है, 0.1 0.2 ऐसा नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। समझ में आया? तो चेक करना है हर एक लाइन को। ये 10 लाइन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 10 लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 में से कौन सी लाइन ऊपर के सेंटीमीटर की कोई भी सेंटीमीटर की कोई भी लाइन पर कोइंसाइड एग्जैक्टली हो रही है। जब आप इसको कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं, आप मेरी पोजीशंस को देखिए। ऐसे रखना है, आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ से आपकी आई साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे स्लैंट करके नहीं देखना है, ऐसे देखना नहीं है। मेक श्योर ये मेजरमेंटल एक्यूरेटली करने के लिए ये सब प्रिकॉशंस करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हाथ स्ट्रेट पकड़ के रखिए, सामने रखिए और चेक कीजिए आउट ऑफ दिस 10 विच लाइन इज एग्जैक्टली कोइंसाइड। वन बाय वन ईच और एवरी लाइन यू कैन चेक। फर्स्ट लाइन इज कोइंसाइड नॉट, देन सेकंड लाइन इज कोइंसाइड नॉट, तो थर्ड लाइन, अगर थर्ड भी नहीं है तो फोर्थ नहीं है तो फिर कोई बोलेगा सर 10 में से कोई एक भी नहीं होगा, तो इट नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट लाइन आपने ये देखा बिटवीन 2.5 एंड 2.6 है तो उसका मीनिंग ये हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पे, उसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर है वह 2.50 सेंटीमीटर से 2.60 सेंटीमीटर के बीच में है। अब इसके बीच में कितनी वैल्यूज होती है हमारे पास? 9 वैल्यूज होती है। कौन सी? 2.51, 2.52 लाइक दैट, 2.59। अब इनमें से कौन सी एग्जैक्ट है वह हमको बेसिकली फाइंड करनी है। 2.5 हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, 2.6 एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, तो इन बिटवीन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू अभी मैं बता रहा हूँ, जस्ट 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो 51 से लेके 59 पॉइंट के बाद हमारे पास 9 वैल्यूज है। एग्जैक्टली वैल्यू कौन सी है वह चेक करना है, एक्यूरेटली करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ बारी बारी कि हर एक 10 लाइनें जो यहाँ पे उसे बारी बारी चेक कीजिए। फर्स्ट लाइन कहाँ पे मिल रही है, या सेकंड लाइन मिल रही है, या थर्ड लाइन मिल रही है, यहाँ ऊपर कौन से सेंटीमीटर को मिल रही है। जैसे कि अभी आप देखो कि यहाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.1, 3.2 ऐसा कोई भी नंबर है, आपको वो कंसीडर नहीं करना है। आपको कंसीडर करना है ये नीचे की 10 लाइन में से, जहाँ पे मेरा थंब अभी घूम रहा है, वो नीचे की 10 लाइन में से कौन से लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है वह फाइंड करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 4th लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर डिवीजन दैट इज नंबर 4 ओनली। 4th लाइन कोइंसाइड हो रही है तो आपका वर्नियर डिवीजन हो गया 4। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेशन करना है, V इक्वल टू N इंटू LC। N इंटू LC, व्हाट इज योर N? 4। व्हाट इज योर LC? 0.01। तो 4 राइट डाउन हियर, 4 इंटू 0.01 इक्वल टू 0.04। दिस वैल्यू नोन एज has a unit centimeter. The phone number has no unit, but LC has a unit centimeter. So your answer is 0.04 centimeter. आपको यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे ऊपर यूनिट लिखा हुआ है बॉक्स में, ठीक है। अब लास्ट कॉलम, मेजर द डायमीटर D इक्वल टू M प्लस V। What is your capital M? 2.5. What is your V? 0.04. So 2.5
plus 0.04. Answer is 2.54. Answer is 2.54. Unit is centimeter. So this is your first observation. Now, after completing your first observation, remove your spherical body. Just rotate it slowly left to right and set. Again pick. फिर से pick up is properly, tightly. Check the first line. Again check the first line. Where is it? Again it lies between 2.5 and 2.6. So write down your main scale is 2.5. Write down your main scale is 2.5. Then after, again check the value out of this number. Which number is exactly coincide? Which number is exactly coincide with main scale out of this 10 line? Suppose the coincide number right now you are finding 5. So your value is 5 into 0.01 equal to 0.05, and the diameter is 2.5 plus 0.04, sorry 5. So answer is 2.55. कोई सोचेगा सर एक ही स्फीयर के दो डायमीटर कैसे हो सकते हैं? तो आपको ये भी बता दूं बेटे कि ये जो स्फीयर्स है आपके हाथ में, ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट 100% थियोरेटिकल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर ये 100% स्फीयरिकल नहीं है, दिखने में स्फीयरिकल है पर थोड़ा सा माइनर कहीं ना कहीं पे, जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस है या ये सरफेस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर फ्रिक्शंस हुआ होगा, घिसाई हो गई होगी, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट्स नहीं हो कि आज मार्केट से लाया हुआ नया ही एपरेटस नहीं है, तो थोड़ा घिसा हुआ होगा। तो कभी कभी घिसाने के बाद इसके ऊपर की जो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिर गए होंगे, घिस गए होंगे, तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा। पर जैसे जैसे आप ऐसे मेजरमेंट लेते जाओगे, आपको अगर ऐसे कहीं से भी घिसा होगा या थोड़ा सा चेंजेस होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। अप टू 0.01 लेवल तक के जो ऑब्जर्वेशंस हो गए, अगर चेंजेस हो गए तो आप इस टाइप से यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल, अगर 100% स्फीयरिकल है तो आपके 5 ऑब्जर्वेशन हो गए तो 5 सेम हो सकते हैं। पर आइडियली बता दूँ आपको बेटे कि 5 ऑब्जर्वेशन कभी भी आपकी सेम नहीं हो सकते। एक तो अगर ये 100% भी स्फीयरिकल है, पर हर एक की आई साइट, जैसे कि मेरे ग्लास से चश्मा है तो मैं ये देखूंगा, मैं ऐसे भी एजेड पर्सन हूँ थोड़ा, तो बराबर है, आई एम नॉट एग्जैक्टली यंग एज यू, बट आपसे बड़ा हूँ थोड़ा उम्र में, तो मेरी आंखें थोड़ी सी कमजोर भी है, तो मैं जो नंबर दिख रहा हूँ शायद आपको उसके अलग नंबर भी दिख सकता है। तो रीडिंग आपके वेरिएबल हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपका ये 2-3 रीडिंग आया फिर एक बार यहाँ पे 2.5 के बाद 2.4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ऐसा नहीं होगा। इतना वेरिएशंस मेजरमेंट में नहीं आएगा बेटे। 2.4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर का वेरिएशन नहीं हो सकता है। वेरिएशन हो सकता है आपके जस्ट कोई सा डिवीजन नंबर में, यहाँ पे वो भी 2-3 डिवीजन आगे पीछे हो सकता है। तो इसके 2-3 डिवीजन आगे पीछे सोचो तो यहाँ पे 2 हो सकते या मैक्सिमम 7 कर सकते हो। 2 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यूज यहाँ पे मिल सकती है आपको, पर मेन स्केल ऑब्जर्वेशन तो आपका वही का वही रहेगा। तो ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो 5 वैल्यू का आपको कैलकुलेशंस दिखाना है। यहाँ पे ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है उसका जो कैलकुलेशंस मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी ये नहीं, लास्ट वाला, उसका जो कैलकुलेशंस है 0.02, 2.5 प्लस 0.02, यहाँ टेबल के अंदर तो मैं दिखा ही रहा हूँ, टेबल के अंदर तो मैं दिखा ही दे रहा हूँ, बरोबर है, आपको पता चल रहा है। (6), 0.01, 0.06,
2.5 प्लस 0.06 2.56। ये लास्ट कॉलम में जो भी एडिशन हमने दिया है ये हम लास्ट मैंने अभी आपको बताया ना, टेबल के बाद आपको कैलकुलेशन करके हेडिंग लगा के और पांचों पांच कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखाने हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशंस 2.5 प्लस 0.04 इक्वल टू, पर पहले यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे d इक्वल टू m प्लस v इक्वल टू 2.5 प्लस 0.04 इक्वल टू 2.54। ऐसे पांचों पांच कैलकुलेशंस आपको दिखाने हैं। 4 और 5 कैलकुलेशंस दिखाने के बाद आपका एवरेज डायमीटर फाइंड करना है। एवरेज डायमीटर d इक्वल टू कैसे आएगा 2.54 प्लस 2.55 प्लस 2.52 प्लस 2.57 प्लस 2.56 डिवाइड बाय 5। Number of the observation is 5, not divided by 2. Okay, you will get the answer. कितना आ सकता है 2.55, तो आंसर इज 2.55 सेंटीमीटर। दिस इज योर डायामीटर ऑफ द गिवंस। यहाँ पे जो मेजरमेंट किया ये जो स्फीयर है उसका डायमीटर हुआ हमारा 2.55। अगर आपने खुद इसी का मेजरमेंट किया होगा तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे 2.55 की जगह 2.54 या 2.56 हो सकता है, पर 2.55 के बाद आपका 2.45 तो नहीं हो पाएगा या 2.65 तो नहीं होगा। 2.55 के नियरेस्ट अगर आपका आंसर आता है तो आप सही हो। इज दैट क्लियर? बरोबर। तो इस टाइप से आपको ये फर्स्ट प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट करना है। ओके